Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do part 6 of the chapter regional aspiration. In last class we were discussing the situation of Jammu Kashmir especially. In that we have understood that the situation of Jammu Kashmir was changing along with the change of central government. If Congress was ruling there, then of course National Conference Party that was able to get majority. That was the major party of Jammu Kashmir, and that was able to control lot, or you can say even all the situation of the Jammu Kashmir. But as we see the scenario in 1977, what happened? The scenario was changed. On the national level, government was also changed, and this situation put the impact over the Kashmir also. Right? So now what after that? We have understood now that after 1996 there were again elections in 2002. Right? And 2002 election, that was the time in which National Conference that was not able to get majority, that failed to win majority. So what was the impact? What was the scenario of Jammu Kashmir after that? Today we are going to discuss that. Right? So let us start now. 2002 and beyond. It means after the elections of 2002, what was the situation of Jammu Kashmir? Okay, so as per the coalition government, because we understood na coalition government of People's Democratic Party PDP and Congress, right? These parties were able to form the government. Okay, so as per the coalition agreement, Mufti Muhammad headed the government for the first 3 years, succeeded by Ghulam Nabi Azad of the Indian National Congress, who, however, could not complete the term as president rule was imposed in the state in July 2008. अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या सिस्टम होना था कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी ना, तो स्टार्टिंग के 3 इयर्स किसने कंप्लीट किए? दैट वाज डन बाय मुफ्ती मोहम्मद. और उन्होंने क्या किया? ही वर्कड फॉर 3 इयर्स, राइट? तो उन्होंने हेड किया गवर्नमेंट को फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स. और उनको सक्सीड किसने किया? गुलाम नबी आजाद ने. ये नेम तो आपने सुना होगा, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? हु हाउएवर कुड नॉट कंप्लीट द टर्म. लेकिन वो टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए. ठीक है, क्यों? एज प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन द स्टेट इन जुलाई 2008. और रीजन क्या था? क्योंकि 2008 में जम्मू कश्मीर में क्या इंप्लीमेंट हो गया? प्रेसिडेंट रूल, राइट? So are you able to recall under which article the president rule will be imposed? Are you able to recall? Of course, Article 356, right? So the next election was held in November 2008. November-December 2008. इसलिए अब क्या हुआ? गवर्नमेंट टेन्योर तो पूरा नहीं कर पाई, प्रेसिडेंट का रूल एस्टैब्लिश हो गया जुलाई में, राइट? बट इट वॉज नेसेसरी टू हैव इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 6 months. That's why it was decided that yes, in November and December there will be elections. तो next election हो गए, right? So another coalition government composed of National Congress Party थी अभी and INC Indian National Congress of course came into power headed by Amar Abdullah in 2009. मतलब again the situation is, अब देखो situation कैसे change हो रही है. पहले तो सेंटर के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही थी. सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो रही थी, स्पेशली कांग्रेस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था ओवर द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कश्मीर. अब क्या हो रहा है? अब 2 इलेक्शन से 2002 और 2008 अब क्या हो रहा है? कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग, कोलिशन गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन बोथ ऑफ द टाइम, राइट? तो फिर क्या हुआ? और इसको हेड किसने किया? अमर अब्दुल्ला अगेन, राइट? इन 2009. However, the state continued to witness disturbances led by the हुर्रियत कॉन्फ्रेंस. अब ये क्या है? मतलब मुस्लिम लोगों की स्पेशली ऐसे हुर्रियत और ये सारी कॉन्फ्रेंसेस बनती रहती हैं. सो ये क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? आईएनसी और एनसी पार्टी ने मिलकर कांग्रेस मतलब गवर्नमेंट बनाई. लेकिन फिर क्या होता है कि स्टेट में डिस्टर्बेंस चलती रही, राइट? मतलब स्टेट वॉज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. और फाइनली क्या हुआ? इन 2014 द स्टेट वेंट इनटू अनदर इलेक्शन. अब फिर क्या हुए? दोबारा से 2014 में इलेक्शंस हुए विच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट इन 25 years. और ये पहली बार हुआ क्या कि इतने 25 years में कि इतनी लार्ज स्केल पे वोटिंग रिकॉर्ड हुई. वोटर्स टर्नआउट मतलब जितने लोगों ने वोट्स डाली हैं, तो मतलब 25 years में हाईएस्ट वोटिंग रिकॉर्ड हुई इन द इलेक्शंस ऑफ 2014. And consequently, our coalition government led by Mufti Muhammad Sayyid of the PDP, People Democratic Party, अभी रीड किया, right, came into
पावर विद द बीजेपी एज इट्स पार्टनर। अब देखो, आपको फिर से याद आया वही वाला सिनेरियो जब कांग्रेस की सिचुएशन थी, राइट, स्ट्रॉन्ग इन द सेंटर, देन द सिचुएशन ऑफ कांग्रेस वाज चेंजिंग अलोंग विद द सेंटर, राइट। दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि जब हमारी पूरी की पूरी कंट्री में बीजेपी की लहर थी, वेव चल रही थी एक टाइप से, तो वहां पे क्या हुआ, द सेम सिस्टम वाज हियर। अब जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो गया, और वो कैसे हुआ कि यहां पर भी फिर क्या हुआ, यहां पर बीजेपी की अलायंस के साथ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी विच वॉज लेड बाय मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उन्होंने लीड किया एंड द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। क्लियर? आफ्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद डाइट, हिज डॉटर महबूबा मुफ्ती, ये तो सबने देखी होगी आप लोगों ने, अगर नहीं देखी तो यू कैन सर्च इट एंड यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लेडी, राइट। तो जैसे ही मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डेथ हुई तो उनकी डॉटर महबूबा मुफ्ती, शी बिकेम द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन अप्रैल 2016। अब ये आपको याद रखना है दैट शी वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर, राइट। And during the tenure of Mehbooba Mufti, major acts of terrorism, mounting external and internal tensions were witnessed. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे इन्होंने कंट्रोल किया मतलब 2016 में, तो उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे टेररिज्म, इंटरनल एक्सटर्नल टेंशन, ये सारी चीजें इजीली विजुअलाइज होती हैं कश्मीर में। फिर क्या हुआ, द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन जून 2018। और हमें क्या लगता है कि हमारी कंट्री में सिचुएशन कैसी है, इफ द सिस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री, देन इट इज definite, then we can impose Article 356 and we can impose emergency under that particular provision, right? तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम सिस्टम। फाइनली क्या हुआ कि ऑन यहाँ पर भी प्रेसिडेंट का रूल इंप्लीमेंट हो गया, राइट, जून 2018 में। ओके, आफ्टर बीजेपी विड्रू इट्स सपोर्ट टू द मुफ्ती गवर्नमेंट। और क्यों? क्योंकि देखो जब सिस्टम वर्क नहीं कर पाया, विटनेस क्या हो रहा था बार बार की टेंशन है, टेररिज्म है, ये सारी चीजें हैं, तो अब फिर क्या किया, बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। देखो याद आ रहा है, सिनेरियो वही हो रहा था, है ना, पीछे भी हम ऐसे सिनेरियो रीड कर चुके हैं। अब यहां पे फिर क्या हुआ, यहां पे बीजेपी ने भी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। और फिर क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 वाज अबॉलिश्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर, राइट। जिसके बाद हमने क्या कर दिया, 2019 में आर्टिकल 370 जो आपने रीड किया था, क्या रीड किया था, दैट स्टेट वाज हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट वाज हैविंग इट्स ओन एंथम आल्सो, राइट। along with that the special thing what was that if any law was passed by the parliament of our country, then it will not be practiced in Jammu Kashmir until and unless it will be passed by the state legislature, right, especially of Jammu Kashmir. This situation was existing. तो फाइनली क्या होता है, इन सारी की सारी सिचुएशंस के डील करने के लिए क्या किया, आर्टिकल 370 को ही रिमूव कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, राइट। तो मतलब जम्मू कश्मीर की जो टेंशन इतने टाइम से चली आ रही थी ना कि उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वो कहीं ना कहीं वही खत्म हो गया। और फाइनली फिर क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड द स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जो आपकी कौन सी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। फाइनली हम लोगों ने क्या किया, आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद क्या किया, जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया 2 यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जो इश्यू बना हुआ था ना कि स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, एक ऐसा स्टेट जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली इतनी पावरफुल है, जिसके चीफ मिनिस्टर को पहले प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, वो सारी की सारी चीजें। बट नाउ द थिंग्स आर नॉर्मल, जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, है ना, बट दैट इज नॉट अ स्टेट, दैट्स अ यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया। अब देखो हम लोगों ने, अगर आपको याद आ रहा हो, जम्मू कश्मीर की सिनेरियो हम लोगों ने पूरा स्टडी किया था। What was the scenario? If you will see towards Jammu, what was the situation? Hindu majority area was there. What was the situation of Kashmir? Muslim majority area was there. And what is the composition of Ladakh? That Muslim along with Buddhist people, right? They are living there. So this is the area. Okay. So ये area basically क्या show करते, plural society, कि जहां पर एक से ज्यादा टाइप के लोग रह रहे हैं, एक से ज्यादा कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। So not only are there diversity of all kind, वहां पर सिर्फ रिलीजियस, कल्चर, लिंग्विस्टिक, एथनिक, ट्राइबल, सिर्फ ये डिफरेंसेस नहीं है,
but there are also divergent political and development aspirations which have been sought to be achieved by the latest act. और इसके अलावा क्या है, उसके अलावा कुछ और ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और एस्पिरेशंस भी हैं जो हम क्या चाह रहे हैं कि ये यस ऑफ कोर्स हम ये अचीव कर लेंगे विद द लेटेस्ट एक्ट. फाइन. सो फाइनली क्या हुआ, जो टेंशन आप इतने टाइम से रीड करते आ रहे हो, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है ना. वी हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन रिगार्डिंग, फ्रॉम हियर वी हैव स्टार्टेड Kashmir issue, right? From here we have started. All these things we have discussed, that from here the situation was, you can say the problem was started. After that we have understood what was the external and what were the internal disputes in the Kashmir especially, right? After that, what was the political scenario? Then we have understood if the national, or you can say the government of national level was changing, then it was putting impact on the politics of Kashmir as well, right? All these things we have studied and we have understood it with the lot of examples. After that we have understood insurgency, and after कि क्या क्या situations हुई, कैसे कैसे problems arise हुई, and how did we try to tackle it. All these things we have discussed in detail, and till now we have completed 2002 and beyond. What was the situation? क्या हुआ कि वहां पे महबूबा मुफ्ती का टाइम पीरियड आप लोगों ने देखा, बट उसमें क्या हो गया, प्रेसिडेंट का रूल इंप्लीमेंट हो गया. और फाइनली क्या हुआ, फाइनली इन 2019 जो हम लोगों ने एक टाइप से जो बना हुआ था ना, मसले की जड़ था, दैट वाज द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, दैट वाज द आर्टिकल 370 ऑफ आवर कंट्री. फाइनली हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको ही अबॉलिश कर दिया, राइट. सो नाउ देयर इज नो एनी इशू. और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पीस हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन में भी मेंटेन हो गई है. This was all about the scenario of Jammu and Kashmir. I hope यहाँ तक आपको completely clear है. अब देखो उसके अलावा ये देखो ये क्या बोल रही है आपको, This is all about governments, officials, leaders, terrorists, but what about the people in Jammu and Kashmir? जो सारी चीजें आपने पढ़ी, क्या पढ़ते आ रहे हो आप, गवर्नमेंट के बारे में रीड करते आ रहे हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप रीड करते आ रहे हो, बट शी इज आस्किंग व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल. एंड दैट इज अ वेरी एप्रोप्रिएट क्वेश्चन इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना. In a democracy, we must go by what they want, shouldn't we? So of course there should be. But because of the situation of the country, what was happening? That at that particular time, our leaders thought that integrity of the nation is most important. And that's why the provision for the Jammu Kashmir were that much special. Article 370 we introduced in the constitution of the country, right? But till now, as we are in strong position, we are in enough strong position, right? So that's why what we have done, we have abolished Article 370, right? And the demand that yes, of course, if India is one, then there should be uniform law, right? Why any particular state should enjoy some special rights? So somehow we have achieved that thing also, right? Got it? I think till here it is clear to all of you. Now we are coming on the aspect of Punjab. Okay, what was the aspect of Punjab? The decade of 1980 also witnessed major developments in the state of Punjab. जम्मू कश्मीर का तो इशू चल ही रहा था. अब 1980 में क्या हुआ, मेजर डेवलपमेंट्स हुए पंजाब स्टेट में. उसके बाद फिर क्या हुआ, द सोशल कंपोजिशन ऑफ द स्टेट चेंज फर्स्ट विद पार्टीशन एंड लेटर ऑन आफ्टर द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. तो इसकी सिनेरियो कैसा था, इसकी सोशल कंपोजिशन भी चेंज हुई. क्यों चेंज हुई, पहले तो पार्टीशन हो गया, राइट, और बॉर्डर एरिया हो गया पाकिस्तान के साथ. तो कहीं ना कहीं क्या था, ऑफ कोर्स इट वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो पहले तो वो वाली प्रॉब्लम थी. फिर क्या हुआ, फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सेपरेट हो गए, राइट, मतलब हरियाणा बन गया उससे. वाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन इन 1950, पंजाब हैड टू वेट टिल 1966 फॉर द क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट, है ना. क्योंकि 1 नवंबर 1966 को क्या होगा, पंजाब से अलग स्टेट फॉर्म होगा, दैट विल बी हरियाणा, और पंजाब क्या हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, है ना. तो यहाँ पे केवल लिंग्विस्टिक बेस पे, जहां 1950 से वो लाइन चलती आ रही थी ना, तो पंजाब को 1966 तक वेट करना पड़ा. द अकाली दल विच फॉर्म्ड इन 1920 एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख, दिस लेड टू द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पंजाबी सूबा. और यहाँ पे मूवमेंट को देखो, आप लोगों ने वहां पढ़ा था ना, डीएमके, एआईडीएमके, जिन पार्टी को बाद में इंपॉर्टेंस मिलेगा. तो यहाँ पर भी पंजाब की कौन सी पार्टी, दैट वाज अकाली दल. एंड दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू सी ये वाली पॉलिटिकल पार्टी पंजाब को बहुत टाइम तक कंट्रोल करके रखेगी, राइट. तो अकाली दल जो फॉर्म हुआ था कब, 1920 में. और ये क्या था, बेसिकली सिख का पॉलिटिकल विंग था.
और उन्होंने क्या डिमांड रखी कि एक अलग से फॉर्मेशन होनी चाहिए पंजाबी सूबा की, बेसिकली इन विच द पीपल हु आर स्पीकिंग पंजाबी दे विल बी लिविंग. द सिख वर नाउ अ मेजॉरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब. अब जो सिख कहां पर थे? मेजॉरिटी में, जो एक टाइप से ट्रंकेटेड मतलब क्या होता है? जो टूटा हुआ पार्ट होता है, ब्रोकन पार्ट होता है, उस पंजाब में थे. फाइन. सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ द पंजाब. बट फर्स्टली लेट अस हैव अ लुक व्हाट इज रिटन हियर. मास्टर तारा सिंह, हु वाज ही? प्रोमिनेंट सिख रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर, वन ऑफ द अर्ली लीडर ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी. राइट, मतलब इस कमेटी के जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उसके लीडर रहे. उसके बाद लीडर ऑफ अकाली मूवमेंट. अकाली मूवमेंट क्या था? दैट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पंजाबी सूबा शुड बी फॉर्म्ड. उसके लीडर रहे. सपोर्टर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट की भी सपोर्टर रहे, बट अपोज टू कांग्रेस पॉलिसी. लेकिन कांग्रेस पॉलिसी की किस चीज को अपोज किया? ऑफ नेगोशिएटिंग ओनली विद द मुस्लिम्स. क्योंकि देखो आप लोगों ने क्या देखा, मुस्लिम्स के ज्यादा हम लोगों ने कहीं ना कहीं ज्यादा एक टाइप से ऐसा एक लीनियंट सा बिहेव करने की कोशिश की. राइट, तो उस पॉलिसी के अगेंस्ट थे बेसिकली. ओके, ही वॉज द सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट पंजाब स्टेट. और सबसे बड़े एडवोकेट किस चीज के? कि एक सेपरेट पंजाब की फॉर्मेशन होनी चाहिए. राइट, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो उसके बाद पंजाब की सिचुएशन आपको आई थिंक क्लियर है. वहां पे क्या डिमांड चल रही थी? डिमांड वॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पंजाबी सूबा. राइट, अब उसके बाद पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या था वहां का? लेट अस हैव अ लुक ओवर इट. अब देखो, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द अकाली केम टू पावर इन 1967. एज आई टोल्ड यू ना कि अब ये अकाली क्या होंगे? अकाली दल अब ये पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल करेगा पंजाब में. तो जैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन हुआ अकाली पावर में आए इन 1967 एंड देन इन 1977. फिर क्या हुआ? ऑन बोथ द ओकेजन्स इट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? दो बार पावर में तो आए, बट बोथ ऑफ द ओकेजन द गवर्नमेंट वाज द कोलिशन गवर्नमेंट. And the Akalis discovered that despite the redrawing of the boundaries, their political position remained precarious. और उन लोगों ने क्या फील किया? अकाली लोगों ने डिस्कवर्ड किया कि उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने रीड्रॉ किया बाउंड्रीज को, बट इवन देन उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो ऐसी ही रहती है. राइट, फर्स्टली देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर इन मिडवे थ्रू द टर्म. पहली बार तो क्या मतलब उनकी पॉलिटिकल पोजीशन, हालांकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड रख रहे हैं regarding the people of Punjab, but even then they are not getting that much importance. उन्होंने क्या फील किया कि पहली बार तो उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया. किसने? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट, थ्रू इट्स टर्म. एंड सेकेंडली क्या हुआ? दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ अमंग द हिंदूज. अब क्योंकि वो सिखों की बात करें ना भाई, तो हिंदुओं का सपोर्ट क्यों गेन करेंगे? राइट, तो उनकी पोजीशन के वीक होने के क्या क्या चांसेस थे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिंग देम. क्यों करेगी? क्योंकि वो कांग्रेस है और वो अकाली दल है. इट विल नॉट सपोर्ट ना. सेकेंडली वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे सपोर्ट फ्रॉम दी हिंदूज कम्युनिटी. एंड थर्डली द सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटी वाज इंटरनली डिफरेंशिएटेड ऑन कास्ट, क्लास एंड लाइंस. जैसे हमारी कंट्री में हिंदू कम्युनिटी डिवाइड होती है ना, हमारे यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होती हैं. तो द सेम सिचुएशन वाज इन पंजाब ऑल्सो. राइट, मतलब जैसे हिंदू लोगों की अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट स्पेशली, तो यहां पर भी तो ऐसा ही होगा ना. सिखों में भी अलग अलग लाइंस बनी होंगी, अलग अलग क्लास बनी होंगी, अलग अलग कास्ट बनी होंगी. राइट, तो इट मीन्स क्या होगा? इफ द पीपल विल बी डिवाइडेड ऑन दिस बेसिस, देन द सिस्टम विल बी, व्हिच काइंड ऑफ सिस्टम विल बी? द सिस्टम विल बी दैट अकाली दल विल नॉट बी एबल टू गेट द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ द कम्युनिटीज. Right? The Congress got more support among the Dalits, whether Hindu or Sikh, than the Akalis. और बल्कि कांग्रेस की क्या पोजीशन थी? कांग्रेस की पोजीशन ये थी कि कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट मिला. किससे? क्योंकि देखो कांग्रेस को आपने क्या रीड किया था? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. राइट, और यहां तक तो आते आते सिनेरियो वैसे भी चेंज हुआ था, कांग्रेस का भी सिनेरियो चेंज हुआ. बट पंजाब की क्या सिचुएशन थी? बिकॉज कांग्रेस वॉज हैव अ कंट्रोल और यू कैन से हैव अ इम्पैक्ट ओवर द पंजाब. इसीलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये लोग स्पेशली डिमांड अगर आप लोगों को क्लियरली दिख रही है कि ये तो किसके लिए डिमांड कर रहे हैं? ये तो डिमांड कर रहे हैं पंजाबी सूबा के लिए. राइट, तो अब इनमें जो दलित पीपल है उनके कोई राइट्स के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, किसी और कम्युनिटी के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है, तो व्हाई द पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट इट? एंड व्हेन एंड इन विच सिचुएशन? इन दैट सिचुएशन इन विच दे आर हैविंग अल्टरनेटिव्स फॉर दैट.
इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो यहां पर जो कांग्रेस का सपोर्ट था वो दलित का भी ज्यादा था, राइट, वेदर हिंदूज और सिख, मतलब देन द अकाली, चाहे वो हिंदू है सिख है, अगर दलित कम्युनिटी है ना, क्योंकि मतलब ऐसे डाउन ट्रोडन पीपल हर एक कम्युनिटी में होंगे, तो वो दलित से, चाहे वो हिंदूज कम्युनिटी के दलित थे चाहे फिर वो सिख कम्युनिटी के दलित थे, बट फिर उनका सपोर्ट, बल्कि उनका सपोर्ट फिर भी किससे ज्यादा था, अकाली लोगों से ज्यादा था। दिस वॉज द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ पंजाब स्पेशली इन द टाइम पीरियड ऑफ 1967 एंड 1977. नाउ व्हाट विल हैपन हियर आफ्टर दैट? ओके, what will be the scenario? अब देखो, it was in the context that during the 1970s a section of Akalis began to demand political autonomy for the region. फिर क्या हुआ, इसी कंटेक्स्ट में 1970s में अकाली लोगों के एक ग्रुप ने, सेक्शन ने क्या डिमांड करनी शुरू कर दी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, हमें तो भाई ज्यादा फ्रीडम चाहिए। और फिर क्या हुआ, दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन आ रेजोल्यूशन पास्ड बाय देयर कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब। आप लोगों ने वर्ड तो सुना होगा। तो आनंदपुर साहिब में उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि वो करना चाहते हैं। जब आनंदपुर साहिब में रेजोल्यूशन ले लिया, फिर क्या हुआ, द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री। और इनकी बेसिकली डिमांड क्या थी, यहां पर जो आनंदपुर साहिब में रेजोल्यूशन था कि रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब एरियाज को ज्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए, और उसके अलावा क्या होना चाहिए, जो सेंटर स्टेट की रिलेशन है ना वो दोबारा से रीडिफाइन होने चाहिए, मतलब सेंटर इतना पावरफुल पोजीशन में नहीं होना चाहिए हमारी कंट्री में। Along with that, the resolution also spoke of the aspiration of the Sikh Qom, right? जो सिखों की बात करे, ये रेजोल्यूशन उनके रिगार्डिंग भी था, क्योंकि वो सिखों की एस्पिरेशंस को शो कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं कि हमें तो अलग से पंजाबी सूबा बनाना है, एंड डिक्लेयर इट्स गोल एज अटेनिंग द बलबला, दैट इज द डोमिनेंस और हेजेमनी ऑफ द सिख। और वो क्या बोलते हैं कि हमारा गोल क्या है, कि सिखों का डोमिनेंस होना चाहिए, और इसके लिए रिलीजियस बेसिस पे गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद द रेजोल्यूशन वाज अ प्ले फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। और देखो, जैसे ये लोग बात करेंगे कि ऑफ कोर्स सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप दे शुड बी चेंज्ड, दे शुड बी रिस्ट्रक्चर्ड, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा डायरेक्टली they are pointing out the federal structure of the country and they are in the favor that it should be restructured, right? उसके बाद the resolution had a limited appeal among the Sikh masses. A few years later, after the Akali movement had been dismissed in 1980, लेकिन इसकी अपील क्या थी, लिमिटेड रही, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई। उसके बाद a few years later, after the Akali government has been dismissed, 1980 में क्या हुआ, मतलब कुछ टाइम के बाद ही अकाली गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। अकाली दल लॉन्च्ड अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट। अब फिर क्या हुआ, अब दोबारा से अकाली दल ने एक मूवमेंट चला दिया, क्योंकि पावर से तो इन लोगों को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, गवर्नमेंट डिसमिस हो गई ना। फिर ये लोग क्या उठाएंगे, एक और मुद्दा उठाएंगे, और इस बार मुद्दा किसके रिगार्डिंग था, दैट वाज द रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, किसके रिगार्डिंग, बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबर स्टेट। A section of the religious leaders raised the question of autonomous Sikh identity. और कुछ लोगों ने, जो religious leaders थे, उन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया, autonomous Sikh identity, मतलब सिखों की एक अलग से आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब मतलब क्या हो रहा है, अब कहीं ना कहीं सिस्टम टेंशन वाला यहां पर भी बनना शुरू हो गया। They are demanding for more autonomy. They are demanding to restructure the center-state relation in our country again. They are demanding for the formation of Punjabi Suba. They are demanding for the water disputes also. They are demanding for the religious autonomy also. They are demanding for the autonomous Sikh identity also. So all these questions, लेकिन क्या गवर्नमेंट इनकी बातों को सुनेगी? Is it possible कि सारी की सारी डिमांड्स को माना जाए? तो लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने की, गवर्नमेंट इनको एक टाइप से नहीं, इनकी बातों को मानेगी। जब नहीं मानेगी तो फिर क्या होगा, दिस पीपल विल, एंड इन द कंट्री देयर विल बी वायलेंस ओनली। अब वो वायलेंस क्या होंगी, कैसे अलार्मिंग सिचुएशन एक बार फिर हो जाएगी कंट्री में, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, all of the context of Jammu Kashmir and Punjab especially till here, before the cycle of violence, all of the political scenario is clear to all of you. But if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video. But if you thought that yes, you are able to understand something beneficial from this video, please like the video and subscribe the channel as well.
We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.